Yeah, so last class we had started off with basic introduction to audit. We have understood the definition of audit, who is an auditor, who uses financial statements and what do they use it for. We have done qualities of auditor, we've done accounting versus auditing. And this is the last answer that we did. I want you to revise through your first 2 pages. Just take a minute, please revise through your first 2 pages. Last 2 minutes, complete what you're reading. Okay, put your sheets upside down. Try to recollect what we have done. Okay, so we have done the definition of audit. This is something that you will have to memorize because almost every answer of audit will start with what audit is, right? So every answer in this particular part of the unit that we are studying will start with what is audit. So audit is, please repeat after me, independent examination of financial information of any entity with a view to express an opinion. So there are some keywords. It is independent examination of financial information of any entity with a view to express an opinion. So 5 keywords we have here. Okay. Independent means unbiased. Examination means vouching, verification, ARP.
Your financial information is nothing but your P&L, balance sheet, notes to accounts and cash flow statement. Any entity, irrespective of its size, legal structure, whether profit making or not, with a view to express an opinion. Opinion are basically two types: modified, unmodified. Unmodified, true and fair view exist. Modified, that can either be qualified, adverse, or disclaimer. In qualified, true and fair view exists subject to minor issues. In adverse, there is no true and fair view. And in disclaimer, we are unable to express an opinion. याद है आपको ये? Everything is clear? कुछ याद आता है? What are the different opinions? What is financial information? Everything okay? Everybody? Okay, very good. Then we saw who's an auditor. Very simple. A practicing chartered accountant, which means a CA holding COP. COP means Certificate of Practice. अब आप ट्राई करो रिकलेक्ट करने का. Who were the users of financial statements? The key to remember this is OMG C square ER. So O for loudly everybody together. Owners. M for management. G for government. C for creditors. C for customers. E for employees and R for research analyst. याद है आपको? ये सबको याद हो रहा है क्या? ओ ओनर्स. ओनर्स को क्या चाहिए? उनको रेट ऑफ रिटर्न समझना है, उनको बोनस समझना है, उनको डिविडेंड समझना है, उनको फ्यूचर में कंटिन्यू होगा कि नहीं कंपनी, वो समझना है. All of those things are the reasons why owners read the financial statements. What about management? One, they are interested in managerial remuneration, and two, they want to make strategic decisions. गवर्नमेंट को क्या चाहिए? टैक्स चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए. क्रेडिटर्स को क्या चाहिए? पैसा वापस चाहिए, क्रेडिट वर्दीनेस देखना है. कस्टमर को क्या चाहिए? कंटिन्यूटी, फ्यूचर में ये मेरे को मिलेगा कि नहीं, वेदर द कंपनी विल बी एबल टू डिलीवर और नॉट. एम्प्लॉइज को क्या चाहिए? बोनस, जॉब कंटिन्यूएंस या जॉब स्टेबिलिटी. Research analysts are basically studying the market so that they can advise people whether to invest or not. Yes, now we know who uses the financial statements. Now you think and tell me, will these users read unaudited financial statements or will they read audited financial statements? Audited. Always they will prefer audited financial statements. क्यों? क्योंकि उसको एक एक्सपर्ट ने रिव्यू किया है, उसको एक एक्सपर्ट ने उस पे ओपिनियन दिया है, एंड दैट ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट ओपिनियन इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस. सबको याद आ रहा है कि नया नया लग रहा है? याद आ रहा है. सी इन ऑडिट ना, इट्स लाइक अ बुक. आगे का नहीं याद है तो I cannot take it further. I cannot teach you other topics unless you know the first chapter. Okay. So it's very, very important that we study as we do it in class as well. Okay. Qualities of auditor. कुछ था क्या? Can you tell me any one quality? First bench, ma'am. Any one quality? Independent. The one in the white t-shirt, ma'am. Independent. Independence. Next person, ma'am. Objective. Objectivity. Next year, sir, on first bench. Integrity. Sorry, integrity. Are you saying integrity? Yes. Okay, so independence, integrity, objectivity हो गया. Don't copy and say. Try to recollect. Yes, ma'am. Next, second bench. Knowledge. Knowledge. Knowledge होना चाहिए. Not just a technical knowledge, but also clients' business knowledge होना चाहिए. Next bench, ma'am. Sorry, next person. Neighbor. Second bench. Next. Logical skills. Logical skills. Very good. So you have to apply logic. You know, sometimes you may feel कि everything is looking fine. But when you apply ratio analysis, you realize कि अरे ये ratios का तो कोई trend ही नहीं है. तो logic लगाओ. अगर trend नहीं है मतलब books में manipulation हो रहा है. You have to be open to the possibility that the client has done some fraud.
Next bench, third bench, ma'am. Communication skills. Communication skills. Very good. Communication skills are of utmost importance. See, please understand that audit is not a one-man job. Okay? आपको टीम के साथ कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा, आपको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको क्लाइंट के क्लाइंट्स के साथ भी कम्युनिकेट करना पड़ सकता है. For example, suppose my client is Reliance Industries Limited, okay? And they have a huge list of debtors, say around 100 debtors है उनके. I am very happy, अरे वाह पैसा मिलने वाला है. कि should I confirm whether पैसा मिलेगा कि नहीं? I should confirm. ऐसा हो सकता है कि बुक सेल्स ऐसे ही बुक कर दिए, रियल सेल है ही नहीं, ये लोग रियल डेटर है ही नहीं, तो मुझे डेटर्स से भी कम्युनिकेट करना पड़ सकता है. तो मैं ऑडिटर अपने टीम में कम्युनिकेट करूं, अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करूं एंड क्लाइंट के क्लाइंट्स के साथ भी कम्युनिकेट करना पड़ सकता है. So why am I stressing on this? Because every stage we need to understand how much information we can disclose. See, within my team also, if I have young articles, I cannot burden them with a lot of information. I have to tell them, yeah, vouching करो, इतना करो और मेरे को रिपोर्ट करो. I cannot tell them, जा लैंड देख के आ, जा डेटर्स को कंफर्मेशन करवा के ला. No, I have to realize how much can be communicated with which team partner. Correct? Likewise, when I'm talking to my client, I cannot ask him open-ended questions. I have to ask him complete structured queries होना चाहिए. मतलब जो भी मैं पूछ रहा हूँ उसका रीजन होना चाहिए, उसका इफेक्ट होना चाहिए. We don't communicate where we don't want any information. Okay? We communicate only to get the correct information. And of course, with the clients when we are asking for confirmations. Okay. So communication skills is important. What else? Next person, ma'am. What did she say? Sorry. Confidentiality. Just 1 minute. Please repeat. Confidentiality. Confidentiality. Very, very important. See, now y'all are going to enter office in another 6 or 9 months. And you'll be given a laptop or some device basically so that you can do the work. Right? आपको वो लैपटॉप ऐसे ही छोड़ के चले जाना है जब आप आपके डेस्क पे नहीं हो, वर्क डेस्क पे नहीं हो, तो यू शुड लीव द लैपटॉप ऑन एंड गो, और शुड यू लॉक इट? Lock it. Your password there has to be a password for opening your laptop. Your access should not be to everybody, right? ये लैपटॉप आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है. This is your work laptop. There is going to be lot of information with you about the client which you cannot disclose to anybody else. जो बातें आपको ऑडिट के दौरान पता चलती है वो आप किसी को भी बता नहीं सकते. अगर आप ऐसा करोगे तो यू आर लीकिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, एंड इफ यू लीक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देयर आर रेपरकशंस. अपने पे डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है. क्लाइंट अपने को सू कर देगा. वी विल हैव टू पे पेनल्टीज, ह्यूज अमाउंट्स, and that is why confidentiality must be maintained always. Like I was telling you, even if my friend has been to a doctor and then I go and the doctor knows that we are best friends, still the doctor is not allowed to disclose his illness to me. डॉक्टर को पता है कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, पर फिर भी डॉक्टर अपने मुंह से नहीं बोलेगा. द फ्रेंड्स में डिस्कस. The doctor is not supposed to divulge. ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? Okay. Anything else? We have tact, that is getting work done from others. We had leadership skills, if you recollect. हमको एक अच्छा लीडर भी होना चाहिए so that we can do our work properly. And of course, caution. Very, very important. Always be careful of how you communicate, how you do your work, how you disclose information, where you report, give your opinion. Always be cautious in your approach.
जैसे आपको पता है अकाउंटेंसी में सिखाया है कंजर्वेटिज्म, अगर कोई लॉस होने वाला है तो भी अभी से प्रोवाइड करके रखो, और प्रॉफिट होने वाला है तो उसको बेनिफिट लेने की जरूरत नहीं है. दिस इज कंजर्वेटिज्म, दिस इज बीइंग कॉशियस. That is the principle that we also follow in our audit. Okay, then we saw accounting versus auditing, which was very simple. I want you to take 2 minutes, go through the difference. ये भी 4 to 5 मार्क्स के लिए बहुत बार आया हुआ है. यू मे थिंक कि अरे ये क्या है, ये क्या अपने को डिस्टिंग्विश बिटवीन अभी भी आएगा क्या? द आंसर इज यस, आएगा. अच्छा, डू आई हैव टू राइट इन अ टैब्यूलर फॉर्मेट और डू आई हैव टू राइट पॉइंट वाइज? It is your choice. I have always felt tabular format is easy because comparison एकदम easily हो जाता है. But अगर आप ऐसे टेबल में comfortable नहीं हो तो आप ऐसा लंबा लंबा लाइन भी लिख सकते हो, पैराग्राफ वाइज वो भी लिख सकते हो, ऐसा टी फॉर्मेट में भी लिख सकते हो. इट इज योर चॉइस. देयर इज नो गिवन वे ऑफ डूइंग डिस्टिंग्विश बिटवीन. You decide how you want to do it. Take 2 minutes, go through this answer. Are we done till here? Yes, is it okay? That last line, do you understand that where accounting ends, auditing starts? Yes. Yes? अगर वो लाइन आपको समझ जाता है तो आपको अकाउंट्स और ऑडिट का डिफरेंस पता है. अकाउंट लिखना अपना काम नहीं है, अपना काम है चेक करना कि बराबर लिखा है या नहीं. बट अगर हमको चेक करना है तो हमको एटलीस्ट अकाउंट्स लिखना तो आना ही चाहिए. And that is why in this entire course of CA, you are going to be experts in two fields, which is accounts and audit. Okay? Anything you want to ask up to here? Okay, then let's go ahead. We have AS and ICS जो आपको लिखने नहीं मिला था लास्ट लेक्चर, आप अभी लिखोगे, बट फर्स्ट आप पहले रिवाइज कर लेते, ठीक है, ताकि टर्मिनोलॉजीज वापस याद आ जाए. So we have a client. In every client, we have two systems: accounting system, internal control system. Accounting system is what I am interested in. I am the auditor. I have to express an opinion on the accounting system of the client. But internal control system affects accounting system. And because it does so, I have to first check the internal control system. See, सिंपल है. आप साल भर पढ़ाई करते हो, जैसे आपको स्टडी लीव मिला 5 महीने का. लेट अस अज्यूम यू गेट 5 months ऑफ स्टडी लीव फॉर योर CA फाइनल एंड you have studied every single day. Okay, say you've put in 12 to 15 hours of study every single day, methodical, अच्छे से पढ़ाई किया है, और लास्ट में एग्जाम के दिन भी अच्छे से पढ़ाई किया है, एग्जाम लिख के आ गए. थिंक एंड टेल मी, आपका रिजल्ट गुड आएगा कि बैड? गुड ना. क्यों?
क्योंकि साल भर पढ़ाई की है, 5 महीने अच्छे से पढ़ाई की है, अभी भी पढ़ रहे हो, डेडिकेटेड हो, हार्ड वर्किंग हो, तो मतलब आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है। कोई भी आपको नहीं पूछेगा कि 5 महीना क्या किया, सब पूछेंगे रिजल्ट क्या है। एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन डिड यू पास और डिड यू फेल। यस, nobody is going to ask you कैसा पढ़ाई किया, कितना पढ़ाई किया, कितने आवर्स पढ़ाई किया, nobody is going to be interested in that. सबको एएस में इंटरेस्ट है, अकाउंटिंग सिस्टम में, रिजल्ट में, पीएनएल, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो। पर ये पीएनएल, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो बनाने के लिए अपने पास एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। सपोज आपका जो अकाउंटेंट है ना, जो बुक्स लिखता है, वो 10th पास है, तो बुक्स बहुत अच्छे लिखे हुए होंगे? नहीं, ये पर्सन को तो अकाउंटेंसी सीखा ही नहीं है, ये कहाँ से अच्छा बुक्स लिखेगा। बट सपोज आपका अकाउंटेंट खुद भी सीए है, अब वो अच्छे से लिखेगा कि अभी भी खराब लिखेगा? अब तो अच्छे से लिखेगा ना। मतलब अच्छा पर्सन सिलेक्ट करोगे तो अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा पर्सन सिलेक्ट करना इज योर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। एंड अच्छा रिजल्ट आना, अच्छे से बुक्स लिखे हुए मिलना, दैट इज योर अकाउंटिंग सिस्टम। So, do you agree with me that ICS affects AS? Yes. So, first I'm going to check the internal control system. So, for that I engage into compliance procedures. कुछ याद है CP का full form क्या था? Compliance procedures. Okay. Okay. Then we have the compliance procedures are done. We come to some conclusion कि या तो internal control strong है या फिर internal control weak है। Strong है तो कम चेकिंग करना पड़ेगा, और वीक है तो ज्यादा चेकिंग करना पड़ेगा। सपोज आप बहुत अच्छे क्लासेस में गए, पूरा साल भर क्लास बराबर अटेंड किया है, नोट्स वोट्स सब कुछ बराबर है आपके पास, अब आपको बैठ के सिर्फ पढ़ना है। बट साल भर आपने कोई क्लास नहीं किया, आपके पास नोट्स नहीं है, क्लास ज्वाइन किया, आधा अटेंड किया, आधा नहीं किया, तो अब आपको ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी कि कम मेहनत लगेगी? ज्यादा। मतलब डिपेंडिंग ऑन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम we determine the nature, timing and effect of the substantive procedures. Substantive procedures is nothing but vouching verification, ARP. Vouching is checking P&L item. Verification is checking balance sheet items. ARP is trend analysis. I had discussed this with you. जैसे आपका रिजल्ट फर्स्ट रैंकर से कंपेयर करना, ये ARP है। आपका रिजल्ट ओवरऑल स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, ओवरऑल इंडस्ट्री से, ये ARP है। ओके, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स। ऑफ कोर्स आगे के चैप्टर में हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे, बट वी एटलीस्ट नो व्हाट इट मीन्स। ओके, now based on these procedures what we collect is audit evidence, and audit evidence forms the basis of our audit opinion. Opinion modified, unmodified, unmodified, either qualified, adverse or disclaimer. सबको ये समझ रहा है? एवरीबडी से यहाँ पे मैंने सब टर्म्स बता दिए, जितना भी फर्स्ट यूनिट में टर्म्स है ना, सब ये चार्ट में है, ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। ओके ओके, so start writing, make it like this only. There will be a client, every client will have two systems, AS and ICS. ICS affects AS. ठीक है, आप ये बना लो, अगर कुछ नहीं समझता है तो मेरे को पूछो।
आपने वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा इस आंसर के सामने. Yes. ये वी और ARP आपको ऑलरेडी पता है, राइट? वाउचिंग, वेरिफिकेशन, एनालिटिकल, रिव्यू प्रोसीजर्स. Are we done? Yes. Yes, सबने फुल फॉर्म भी लिख दिए. Yes. ओके. यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 लिखना है. पहले कंप्लायंस प्रोसीजर्स किए जाते हैं और बेस्ड ऑन दैट वी डू सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स. ओके. Okay, very good. Now let's come to the next answer, which is SA 200. Now you first pay attention. I will give you time to write. Okay. So right now, please don't write anything. Okay. Now this is the first standard that you are studying in your audit, which is SA 200. It deals with basic principles governing an audit. बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट मतलब क्या? अगर आप ये सब फॉलो नहीं करोगे, जो लिस्ट दिए हैं 9 चीजों की, वो फॉलो नहीं करोगे, तो अब आप डिलिजेंट नहीं हो, आप नेग्लिजेंट हो. इफ यू डोंट फॉलो SA 200 while doing an audit, then you are negligent. And can a professional be negligent? जैसे सपोज आप डॉक्टर हो कि आप ऑपरेशन थिएटर में गए. आर यू सपोज टू वेयर अ मास्क, कवर योर हेड, wear the scrubs, wear all the gloves, and then when you do the operation, you have to leave something inside the body, no? Leave a cotton, leave a scissor, leave a napkin inside the body, and then stitch the body. ऐसा? No. No. बेसिक प्रिंसिपल है, आपको ये सब करना है, आपको हाइजीन मेंटेन करना है, आपको जो भी XYZ पॉइंट्स होंगे वो सब फॉलो करने. यू कैन नॉट बी नेग्लिजेंट. सपोज डॉक्टर ने पेशेंट के पेट में सिजर छोड़ दिया, कोई बात नहीं ना, ऐसा हो जाता है कभी कभी. विल द पेशेंट सू द डॉक्टर? यस. Yes. अभी तो आपको पता है ना, कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट.
कोपरा में सब हॉस्पिटल, सब डॉक्टर, सबको तकलीफ हो गया है. करेक्ट? Why? Because even a smallest negligence will result in a court case. But as professionals, when you have studied so much, you are not expected to be negligent. You are supposed to be diligent. You are supposed to be very, very professional in your work. Likewise, as chartered accountants, we are also experts in two subjects, accounts and audit. और अगर वो भी हम ठीक से नहीं करेंगे तो हम भी negligent हो जाएंगे. You know, once Modi ji in his speech said that no scam can ever happen if every chartered accountant is diligent. No scam can ever happen. मतलब for scams to happen, we have to be participants. हम ही तो सिखाएंगे ना कैसे करना है, और फिर हम उसको ओवरलुक करेंगे और हम ऑडिट रिपोर्ट बना देंगे और सब काम हो गया. ऐसा चलेगा नहीं. A lot of you have already done company law. Some of you who may not have done company law. To give you a brief idea, पहले कंपनीज एक्ट 1956 में ना कभी भी ऑडिटर को जेल नहीं होता था. चाहे हम कुछ भी कर दे, कितना भी बड़ा स्कैम होने दो, हम जेल नहीं जाते. हम मॉनेटरी पनिशमेंट होता है, मतलब अपना जो भी फीस अपन ने लिया वो सब रिटर्न दे दो, पेनल्टी भरना पड़ेगा, अपना सीओपी जा सकता है, इंस्टीट्यूट अपने को सस्पेंड कर देगा, ऐसा सब कुछ हो जाएगा, बट वी डोंट गो टू जेल. नाउ कंपनीज एक्ट 2013 said if you are caught for negligence, willful negligence, you will go to jail. तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं फ्यूचर में जाके प्रैक्टिसिंग सीए बनूंगा, तो आप ये सोच लो कि आप शायद जीवन में एक बार जेल के दर्शन कर सकते हो, अगर आप ये सारे स्टैंडर्ड्स बराबर से फॉलो नहीं करोगे. तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. So what is the first standard and the most basic standard that we have to study? Basic principles governing an audit. The first one, I can see what Andu, Pandu, Dondu cannot see. I am a CA. I am a professional. I can do things that other random people cannot do. I can see things what other random people cannot see. So what is I? The first I is, please do not write right now, independence, objectivity, and integrity. अब आपको समझा अपन ने क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर क्यों पढ़ा है? ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग ऑडिट है. हमारा इंडिपेंडेंट होना जरूरी है. हमारा ऑब्जेक्टिव माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम ऑडिट ओपिनियन देना चाहते हैं, एंड हमको ऑनेस्ट होना भी बहुत बहुत जरूरी है. सो इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी. ओके, व्हाट नेक्स्ट? Confidentiality. Do not disclose client information to anybody. Nobody. अच्छा, बट पता है हमने एक सेक्शन पढ़ा था जहां क्लाइंट में 1 करोड़ का फ्रॉड से ज्यादा मिला तो वी हैव टू इन्फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट. दैट इज अलाउड बिकॉज दैट लॉ इज रिक्वायरिंग यू टू डू सो. So that you have to do. But otherwise you are not supposed to disclose any information. आपको जो भी बोलना है ना, आप ऑडिट ओपिनियन में बोल दो, ऑडिट रिपोर्ट में. ऑडिट रिपोर्ट में बोलोगे चलेगा, बट ऐसे ही आप प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते नहीं. नेक्स्ट, स्किल एंड कॉम्पिटेंस. मेरे पास टेक्निकल स्किल होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, लॉजिकल स्किल होना चाहिए, लीडरशिप स्किल होना चाहिए, मैं कॉम्पिटेंट होना चाहिए. मतलब आई मस्ट बी अ सीए होल्डिंग सीओपी. आई कैन नॉट बी एनी रैंडम पर्सन डूइंग ऑडिट. आई हैव टू बी कॉम्पिटेंट टू डू दिस जॉब. What? This is very, very interesting, and please pay attention. Work performed by others. Now remember I told you audit is not a one man's job. You remember this?
ऑडिट अकेले थोड़ी कर सकते। अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, उसके लाखों ट्रांजैक्शन है, आई एम नॉट सेइंग लाखों रुपए के, रुपए तो करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन होंगे, बट ट्रांजैक्शंस विल बी इन लैक्स. You think I can single-handedly go and check everything? I am also a CA holding COP. Can I do it alone? No. But I will sign the audit report. Correct? I am the CA holding COP. I am going to sign the audit report, but I cannot do everything on my own. I need a team of articles. I need a team of CAs to assist me. Now ये सब जो persons है ना जो मुझे assist करेंगे, they are others. Who are they? Others. Others. I, the CA who will sign the audit report, I am the auditor. मेरे अलावा मेरे टीम में जो भी लोग हैं वो others है. Can I give them work? Yes. Can I rely on their work? Yes. But can I say they are responsible for my opinion? No. I can delegate work. I can use work performed by others. I can rely on their work. But I cannot say they are responsible for my opinion. नहीं तो ऐसे हर सीए बोलेगा आर्टिकल में काम अच्छे से नहीं किया, हमारा फ्रॉड आ गया, हमको पता ही नहीं था कि फ्रॉड है. ऐसा कैन आई ब्लेम समबडी? नो. जैसे मैं डॉक्टर हूं, ओके, मैंने ऑपरेशन किया, मुझे ही स्टिच करना चाहिए ना. सपोज मैंने बॉडी का कोई पार्ट कट किया, कुछ साफ किया और अब मेरे को स्टिच करना है. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल ऑपरेशन और ओनली कटिंग? Whole operation, obviously. Even if I delegate this work, see, a lot of times doctors will delegate this stitching work to their juniors. तो इसका मतलब है वो गड़बड़ किया तो किया, अभी क्या, वो छोटा है उसने कर दिया गड़बड़. नहीं, ऐसा नहीं चलेगा. द डॉक्टर इज रिस्पॉन्सिबल. आई हैव पेड यू एंड टू एंड. पूरा ऑपरेशन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है. Like that, I am the auditor who's signing the audit report. पूरा responsibility मेरा है. But I can delegate work. I can use their work. I can rely on their work. But I cannot say that they are responsible for my opinion. ठीक है. इसलिए जब आप ऑफिस जाओगे और आप काम करना स्टार्ट करोगे, आपका सीनियर, आप बोलोगे हाँ हो गया, तो सीनियर बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा कि ये ऐसा किया क्या, ये ऐसा मिला क्या, ऐसा देखा क्या, क्यों इतना पूछ रहा है. ही डज नॉट ट्रस्ट यू. नो, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपिनियन. तुम तो बोलोगे मैं तो आर्टिकल हूं, मुझे क्या, मेरे को क्या पता है, मैं थोड़ी सीए हूं. बट ही इज रिस्पॉन्सिबल. ही कैन डेलीगेट वर्क बट कैनॉट से दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओपिनियन. क्लियर है? ये समझ रहा है आपको ये पॉइंट? इस सिंगल पॉइंट पे ही 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है. हाँ, दे गिव यू अ सिचुएशन एंड दे आस्क यू व्हाट शुड अ सीए डू. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड. सो वी कैन डेलीगेट वर्क, वी कैन यूज वर्क, we can rely on this work done by others, but we remain responsible for our opinion. Auditor remains responsible for his opinion. Has everybody understood this point? Okay. The next point that we have is very interesting. Audit evidence. Suppose I go to a doctor, okay, and I'm coughing, and the doctor outrightly says, हाँ हाँ आपको तो tuberculosis हो गया. Will I trust him? No. Is he mad? How can he say any cough is not tuberculosis, right? He has to get some test done. Blood test करवाओ, lungs का test करवाओ, ऐसा कुछ तो भी test तो होता ही होगा ना. जब वो टेस्ट में रिजल्ट ऐसा आएगा कि टीबी लग रहा है, फिर देखेगा कितना परसेंटेज है, फिर अकॉर्डिंगली प्रिस्क्रिप्शन देगा. अच्छा, मतलब बिना रिपोर्ट के डायग्नोसिस इज करेक्ट? नो. बिना एविडेंस के
ऑडिट ओपिनियन क्या मायने रखता है? कुछ भी नहीं। आपने ऑडिट किया तो मतलब आपने एविडेंस कलेक्ट किया ताकि आप ऑडिट ओपिनियन बना सको। करेक्ट है ना? सो फॉर एग्जाम्पल मैंने टेस्ट चेक किया, मैंने सैंपल बेसिस पे चेकिंग की है एंड आई रियलाइज ओके एवरीथिंग सीम्स टू बी करेक्ट, they are matching, the amounts are matching in the actual stock register and the actual physical stock balance, both are matching correctly. That means the stock balance is true and fair. सपोज आप स्टॉक चेक कर रहे हो, आपको कोई कंपनी में आपको स्टॉक चेकिंग, स्टॉक टेकिंग के लिए भेजा है, आप फिजिकली काउंट करोगे ना स्टॉक, और फिर देखोगे कि बुक्स में भी उतना ही दिख रहा है कि नहीं। अगर दिख रहा है तो सही है, नहीं दिख रहा है तो गड़बड़ हो गया। मतलब आपने कुछ काम किया ना, ऑब्जर्व किया, काउंटिंग किया, क्रॉस चेकिंग किया, वेरीफाई किया। दिस इज प्रोसीजर। प्रोसीजर टू डू व्हाट? टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस so that we can base our audit opinion. So another thing that we have to always remember is our whole purpose of doing audit is to collect audit evidence. Next, planning. Oops. Planning मतलब क्या? ऐसे ही हैपहैजर्ड ऑडिट करेंगे कि सिस्टमैटिक होना चाहिए? सिस्टमैटिक होना चाहिए ना। जैसे when I'm teaching you audit, am I teaching you the last chapter first, then the fifth chapter, then the first chapter? मतलब देखते जो भी छोटा होएगा पहले वो खत्म कर देते, ऐसा पढ़ाई होता है? नहीं। It has to be in a planned manner. It has to be in a systematic manner. Likewise, when we start our audit, the first thing we do is bank reconciliation statement. पहले हम बैंक रिकोर्स करते हैं, फिर हम टेस्ट चेकिंग पे जाते हैं, वाउचिंग वेरिफिकेशन करते हैं। अगर कोई कंपनी का होल्डिंग सब्सिडियरी होता है तो कंसोलिडेशन करते हैं और फिर फाइनल रिपोर्ट बनता है। हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का इंफॉर्मेशन नेक्स्ट स्टेप को अफेक्ट करेगा, फिर सेकेंड स्टेप का इंफॉर्मेशन थर्ड स्टेप डिसाइड करेगा। जैसे मैंने पहले कंप्लायंस प्रोसीजर किया, याद है? Do I first do substantive then do compliance की first compliance then substantive? First compliance then substantive. ये सब आपका जब अच्छा प्लान होगा तो ही आप कर पाओगे। You need a good plan to do work in organized, systematic manner. Also, most important is timely completion. टाइम में खत्म होना चाहिए ना काम। ऐसा थोड़ी ऑडिट जीवन भर करते रहते। 31 मार्च को बुक्स खत्म हुआ, बाय 30th सितंबर द लास्ट डेट टू होल्ड एजीएम, याद है क्या आपको? यस, 30th सितंबर इज द लास्ट डेट टू होल्ड एजीएम, मतलब समवेयर बाय 1st सितंबर तो हमको ऑडिट खत्म कर देना चाहिए ना। तब तो वो लोग ऑडिटेड रिपोर्ट का प्रिंट आउट करेंगे, सबको भेजेंगे, 21 डेज का क्लियर नोटिस होना चाहिए। ये सब भी तो पॉइंट्स है। Audit is not endless. Audit report has to be made by a particular time, in a particular time period, and that is why audit plan is of utmost importance. Next point, which is obvious, is documentation. Everything that you do, you must document. सपोज आपने टेस्ट चेक किया, आपने सैंपल सिलेक्ट किया, कौन से आइटम चेक किए उसका सैंपल का एक नोट बना हुआ आपके पास रहना चाहिए। सपोज आपने डेटर्स 100 डेटर्स है, उसमें से 10 डेटर्स को पूछा डू यू कंफर्म विद दिस बैलेंस, और उन्होंने लिखा यस, तो ये जो भी कम्युनिकेशन है, ईमेल में हो या फिजिकल लेटर में हो, आपके पास रिकॉर्ड रहना चाहिए। ये प्रूफ है कि आपने कुछ काम किया है। डॉक्यूमेंटेशन। जैसे पता है एग्जाम में आप जब मैथ करते थे, आपको टीचर बोलते थे ना वर्किंग नोट्स बनाओ। जैसे अभी भी आप इनकम टैक्स करोगे तो आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, डेप्रिसिएशन स्केड्यूल है, ये सब के आप वर्किंग नोट बनाते हो। यस और नो? इज वर्किंग नोट नेसेसरी?
Yes. If you don't show working notes, I will think you have copied the answer from somewhere. That means आपको आता ही नहीं है ये आंसर लाना. Likewise, अगर आपने ऑडिट किया है तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है. All of these will come to us in the next chapters. Huh? All of these points, audit planning, audit evidence, audit documentation, they become a essay in its own. तो आप ध्यान से समझो टॉपिक को ताकि फिर हम आगे इसको और एक्सपैंड कर सके. ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग. The purpose of doing audit is to conclude and give our opinion on whether the company's financials give a true and fair view or not. And we check the systems, that is AS and ICS. The systems of the client have to be checked, that is the accounting system and the internal control system. So I can see what Andu Pandu Dhondu cannot see. अब आपको समझ रहा है what are the basic principles governing an audit? Yes, I want you to take 2 minutes. आप ये please लिख लीजिए. The headlines: I for independence, objectivity, integrity, so on and so forth. जब आप वर्क परफॉर्म बाय अदर्स पे आओगे ना तो हमको थोड़ा सा लिखना है. हा? तो बहुत बड़ा बड़ा करके आप जगह वेस्ट मत कर देना. ओके, वी वांट टू राइट 2-3 लाइंस. डन. Yes. ओके, ये वर्क परफॉर्म बाय अदर्स पे आ जाइए और उधर फर्स्ट पॉइंट लिखिए. ऑडिटर कैन डेलीगेट वर्क, फुल स्टॉप. और underline the word delegate. To delegate means to give, okay, to give work to others. So auditor can delegate work to others, full stop. Next line: auditor can use their work, underline use. फिर next line, third point: auditor can rely on their work, and underline the word rely. तो डेलीगेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं. लास्ट लाइन में लिखिए बट ऑडिटर रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओपिनियन. बट ऑडिटर remains responsible for his opinion. Done?
ये आपको समझ में आ रहा है आपने क्या लिखा? Yes. डेलीगेट करो, यूज द वर्क करो, रिलाई ऑन द वर्क करो, बट यू रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओपिनियन. Okay. Moving ahead then, we have an interesting topic here, which is objective of audit. See, there are two parts to the objective. First is primary, then is secondary. Primary objective matlab main purpose of doing audit is what? ऑडिट का अगर डेफिनेशन याद है तो उसमें लिखा है ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी with a view to express an opinion. मतलब why are you doing audit? To express an opinion. मतलब अपना primary objective of doing audit is to express an opinion. To express an opinion on the financial statements. That is to report on the existence or non-existence of true and fair view. ये ट्रू एंड फेयर को आप अंडरलाइन करके रखेंगे. प्लीज रिमेंबर करिए कि वी डू नॉट से ट्रू एंड करेक्ट. वी ऑलवेज यूज द वर्ड ट्रू एंड फेयर. प्लीज अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट that as an auditor I cannot do 100% टेस्ट. हर चीज का चेकिंग करना मेरे लिए प्रैक्टिकल है ही नहीं. एंड इसलिए आई कैन नॉट से थिंग्स आर ट्रू एंड करेक्ट. आई कैन से थिंग्स आर ट्रू एंड फेयर. जैसे सपोज आपने ब्लड टेस्ट कराया, ओके, ब्लड टेस्ट में आपका शुगर नॉर्मल आया, हेमोग्लोबिन नॉर्मल आया, सब कुछ ठीक ही आया, कोई वायरस नहीं है, कुछ नहीं है, बट आप बीमार तो हो. ऐसा हो सकता है ना, कभी कभी ब्लड रिपोर्ट सब नॉर्मल आती है बट आप बीमार तो होते हो. मतलब देयर इज समथिंग दैट द टेस्ट इज नॉट एबल टू कैच. पूरा बॉडी का खून थोड़ी चेक होता है. इतना सा एक टेस्ट ट्यूब में इतना सा खून चेक होता है, करेक्ट है ना. उसके बेसिस पे एनालिसिस की जाती है. तो वैसे ही मैं ऑडिटर हूं, मैंने 100% चेकिंग किया नहीं है. तो अगर मैंने 100% चेकिंग नहीं किया है तो आई हैव टू से ट्रू एंड फेयर एंड नॉट ट्रू एंड करेक्ट. ओके, अब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट्स. सी, वी डोंट डू ऑडिट टू फाइंड फ्रॉड. वी डू ऑडिट एंड इफ वी फाइंड फ्रॉड वी रिपोर्ट. मतलब वी आर नॉट डूइंग ऑडिट फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग फ्रॉड्स. हम ये अज्यूम नहीं करते कि आपने फ्रॉड किया ही है. हम ओपन माइंड रखते हैं कि आप फ्रॉड कर सकते हो. जैसे आपके पेरेंट्स, आप कहीं बाहर से आए, थोड़ा लेट हो गया, तो पूछते हैं ना कहाँ रह गए, क्यों लेट हुआ, क्यों? क्योंकि उनको पता है आप कुछ ना कुछ गलत करके आए हो. ऐसा कि वो ओपन माइंड रखे कि कुछ गलत भी हो सकता है, जेन्युइनली भी कुछ हुआ होगा. दे आर आस्किंग, नो. आर दे सस्पिशियस ऑफ यू? नो. बट आर दे इंक्वायरिंग? Yes. Is there a difference in the two? Yes. See, 1 or 2 times if you are late, they will inquire, they will let it go. Okay. But next time, suppose you said that I was with a friend and I was studying and we got late. और कल आपका वो फ्रेंड घर आ गया. कैजुअली पेरेंट विल आस्क ना, अरे कल बहुत देर तक पढ़ाई किए, बहुत लेट हो गया तुम लोगों को. एंड व्हाट इफ ही सेज नो, नहीं मैं तो कर ही नहीं रहा था पढ़ाई, मैं तो घर पे ही नहीं था आंटी. गॉन. व्हाट आर वी डूइंग? वी आर कोरैबोरेटिंग द एविडेंस. जो आपने बोला, जो क्लाइंट बोला, वही सामने वाला पार्टी बोल रहा है कि नहीं, ये तो हम चेक करेंगे ना. हम सस्पिशियस नहीं है, हम क्या है, इंक्वायरिंग. जैसे यू नो, जब भी फूड, कोई भी रेस्टोरेंट में जाओ, ओके, बिल आता है. एज अ सीए स्टूडेंट ना, अपना आदत होता है कि चेक करो बिल सही है कि. पहले तो अपन ये देखते कि ये सब आइटम मंगाया था कि,
ओके, मंगाने का काम हो गया, तो फिर हम एडिशन भी चेक करते कि एडिशन भी रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि मैं सीए हूं, मैं अकाउंटेंट हूं, मुझे ऐड करना आता है, तो हम एडिशन भी चेक करते हैं. दिस इज आवर बेसिक नेचर. वी आर नॉट सस्पिशियस, वी डोंट थिंक दैट ही इज डन अ फ्रॉड, बट कर सकता है ना. कभी आपने 5 रोटी मंगाया, उसने 10 रोटी डाल दिया बिल में बाय मिस्टेक, हो तो सकता है ना. तो हमको ओपन माइंड रखना है कि मिस्टेक हो सकता है, and we may be able to detect. So our secondary objective is to detect misstatements. Okay, that is to confirm or dispel the possibility of existence of fraud and error in financial statements. To confirm or dispel, confirm मतलब हाँ fraud error है, dispel मतलब हाँ fraud error नहीं है. पॉसिबिलिटी दोनों का है, तो वी आर ट्राइंग टू चेक वेदर फ्रॉड एंड एरर है या नहीं. बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी of prevention, detection, and correction of misstatements is that of the management. ये मैनेजमेंट का काम है कि कोई भी टाइप का फ्रॉड एरर ना हो. Audit may not reveal all misstatements due to inherent limitations of audit. हम तो 100% चेक करते ही नहीं है, तो हमको सारे फ्रॉड एरर मिलना पॉसिबल है ही नहीं. ये इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिट का. वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस. If auditor follows the basic principles governing an audit, he cannot be held liable for non-detection of misstatements in financial statement. अगर मैं बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट फॉलो करके ऑडिट कर रहा हूं, तो मैं नेग्लिजेंट नहीं हूं. और मैं नेग्लिजेंट नहीं हूं, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट डिटेक्टिंग योर फ्रॉड्स एंड एरर्स. It's like you go to the doctor, you say this is hurting, my heart hurts when I eat a lot or whatever. तो डॉक्टर आपको एक दो चीज पूछता है, सिम्टम समझता है, उसको लगता है गैस है, वो गैस का दवाई देता है, वो बराबर आपको पूछ रहा है जो भी, एंड यू आर आंसरिंग. नाउ से रात को आपको हार्ट अटैक आ गया, तो वो डॉक्टर का थोड़ी मिस्टेक है कि तुमको हार्ट अटैक आ गया. दैट वाज नॉट रिलेटेड ओनली, नो. सी, आई एम नॉट नेग्लिजेंट, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट हार्ट अटैक्स. कैन आई टेल यू अरे तुमको 10:10 को होने वाला है? अरे ऐसा थोड़ी पॉसिबल है. मैं प्रोफेशनल हूं, मैं डॉक्टर हूं, लेकिन मैं भगवान नहीं. लाइक दैट मैं सीए हूं, मैं सीए का काम कर सकता हूं, लेकिन मैं 100% चेकिंग कर सकता नहीं. आई कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फ्रॉड्स एंड एरर्स. ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है अपने लिए? क्योंकि अगर हम ये प्रूव नहीं कर पाए, तो हम जेल जाएंगे, और हमको जेल नहीं जाना है. करेक्ट है ना? इज एनीबडी लुकिंग फॉरवर्ड टू अ जेल विजिट? नो नो, नॉट एट ऑल, राइट? Somebody is looking forward to it? No. Sir, then you do law, and then you go to the jail for a visit. Don't become a CA and go to the jail, okay? Study law and go to the jail for a visit. Okay. Now we have a very interesting case law next, which is Kingston Cotton Mills Company, where they told us that auditor is a watchdog, but not a bloodhound. This is so silly, you know. They are comparing us with species of dogs. Are we dogs after studying such a difficult course, जहाँ पे 9%, 8% ऐसा पासिंग परसेंटेज है, 100 लोगों में से 8 लोग पास होते हैं? वैसा डिफिकल्ट कोर्स करके हमको क्या बोला गया है कि हम डॉग हैं. पर डॉग में भी हम वॉच डॉग हैं, हम ब्लड हाउंड नहीं. ब्लड हाउंड मतलब क्या? वो जो सीआईडी लोगों के पास डॉग होता है ना, जो जिसको स्मेल करवा दो तो वो ढूंढ के ही रहेगा किसने चोरी की, किसने खून किया. दैट इज अ ब्लड हाउंड, ओके. वेर ही इज बिहाइंड, ही गेट्स द smell and he is going to be able to track the person.
वॉच डॉग मतलब क्या? देखो, देख देख के और कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ देखना है। तो इफ यू रिमेंबर बीपीजी है, उसमें क्या था? आई कैन सी। ऐसा बोला आई विल बाइट? नो, आई कैन सी व्हाट अदर्स कैन नॉट सी। करेक्ट? तो हम वॉच डॉग है, हम सी करते हैं, हम किसी को तंग नहीं करते। अच्छा, ऐसा क्यों बोला गया होगा? मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपेयरिंग अस विद डॉग्स? Now what happens is auditors have been said to have a very typical approach which is called professional skepticism. Please don't write, just pay attention. Professional skepticism. This is a very important word for us, okay? What does it mean? हर चीज के बारे में पूछो why, पूछो how, बट उसके बाद उसको छोड़ दो बस. You understand how things are being done, why things are being done as they are being done, and then you leave it. You are not supposed to teach anybody anything. For example, if the client says कि मैंने books ऐसा लिखा है, I will ask him कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, क्या पासवर्ड प्रोटेक्शन है, ऐसा सब टाइप का क्वेश्चंस I will ask. I don't have to sit and teach him कि अरे तुम ऐसा टैली गलत कर रहे हो, ऐसा टैली करो, अरे तुमको ये सॉफ्टवेयर नहीं यूज करना चाहिए, तुम बान लाओ, ओरेकल लाओ. ये मेरा काम नहीं है. मेरा काम है टू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू डूइंग एंड टू कमेंट ऑन. बस. I don't have to sit and teach you anything. I don't have to be suspicious of you. I have to be inquiring. Like I told you, when you come late, your parents will inquire कि बाबा किधर थे, कहाँ गए. But they'll not like make you sit and then tell you, ask you एक एक मिनट का कि अच्छा फिर 2:02 पे तुम किधर थे, फिर 2:04 को किधर थे, फिर 2 It's okay, relax. You've said something. They may corroborate it with your friends. That is possible. But after that, they will leave it. Finally, it is your life, your choice, right? Likewise, a CA, a professional, will also be inquiring and not suspicious. Which means, I'm coming to the most important line. अगर मैनेजमेंट का बोला हुआ मुझे डाउटफुल नहीं लगता है, मुझे ठीक लगता है, तो आई कैन कंटिन्यू विथ व्हाट ही हैज सेड. I don't have to cross question him or cross examine him. That is not my job. अगर मैनेजमेंट बोला हम ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ऐसा टाइप का पासवर्ड प्रोटेक्शन है, हम मंथली पासवर्ड चेंज करते हैं, दैट्स इट. I don't have to sit and tell them to do it weekly. Don't put your birth date in the password. This is not my job to do. I don't have to teach. I have to ask and I have to report. That is it. That is why they have said we are a watchdog, but not a bloodhound. So, what is the next line? If no doubtful situations exist, auditor can rely on the management or employee of the client. अगर कुछ भी गलत नहीं लग रहा है, सब ठीक लग रहा है, हमारे चेकिंग से भी सब कुछ ठीक लग रहा है, तो बस हो गया. इनफ. You don't have to go further. We are professionally skeptical. We are not suspicious. Please write down a line over here. You have some space. Please write down. Auditor will observe. Auditor will observe professional skepticism. Auditor will observe professional skepticism. Full stop. Continue. Thus, auditor is of an inquiring mind. Thus, auditor is of an inquiring mind and not suspicious mind. And not suspicious mind.
इट्स लाइक यू नो आप घर से निकले, ओके, आपने लॉक कर दिया, दरवाजा लॉक किया, लॉक लगा दिया, आप एक बार पुल करके चेक करते हो ना बराबर लॉक लगा है कि नहीं, कभी कभी नहीं भी लगता है बराबर, तो वी जस्ट चेक इट वंस। डू वी सिट देयर ओनली कि कोई आएगा चोर, वो तोड़ेगा ताला, फिर वो घुसेगा अंदर, ऐसा अपन सोच के बैठे रहते हैं क्या उधर ही, कि अपन लॉक किया, चेक किया और चले जाते? लॉक किया, चेक किया, चले जाओ, बस हो गया। दिस इज आवर जॉब. We are of inquiring mind, not suspicious. Yes, ma'am. Have you understood this? Kingston Cotton Mills Company has said auditor is a watchdog but not a bloodhound. ये आपको justify के लिए आता है. Okay? So you may have to justify this statement that auditor is a watchdog but not a bloodhound. So you will of course write, if no doubtful situation exists, auditor can rely on management employees of the client. You say that auditor observes professional skepticism, that is, he is of inquiring mind and not suspicious. All okay till here? Yes. Yes? Okay. Moving ahead then, that's a very small answer which we have here. What is the scope of audit? Now the scope of audit is given under relevant legislation, मतलब जो भी laws है वो बताते हैं कि audit कैसा किया जाता है. Standards on auditing है जो guide करेंगे कि audit कैसा करना है. And very important, we have something called terms of engagement. Terms of engagement. Okay. Now what is this? Now this is basically when a client selects a particular person to be his auditor, they discuss and decide how the audit will be done. जैसे ऑडिटर बोलेगा कि आई विल कम वंस एवरी क्वार्टर एंड आई विल लाइक टू सी द बुक्स ऑफ एवरी क्वार्टर एंड आई विल लाइक टू डू स्टॉक टेकिंग ट्वाइस इन अ ईयर, आई मे कम फॉर सरप्राइज विजिट्स फॉर कैश काउंटिंग, ऐसा टाइप की कुछ कुछ चीजें जो भी ऑडिटर को करने का मन है वो बताएगा. क्लाइंट अपना टाइप अपने साइड से बोलेगा कि ठीक है आप ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, ठीक है हम आपको सैटरडे संडे को एक्सेस दे पाएंगे, मंडे टू फ्राइडे हम सिस्टम का एक्सेस नहीं दे पाएंगे. ऐसा जो भी उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो जो एक पेपर में लिखा रहता है, दैट इज कॉल्ड द एंगेजमेंट लेटर एंड दैट हैज योर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. उस एंगेजमेंट लेटर में आप ये भी लिख सकते हो कि आप कितने बार आओगे, आप कब तक ऑडिट फिनिश कर दोगे, क्या डेट पे ऑडिट रिपोर्ट बना के दे दोगे, ऑडिट फीस क्या रहेगा, ऑडिट फीस कैसे पे करना है, मतलब every time you finish a particular work, will you raise a bill or will you complete the whole audit report and then raise a bill, मतलब जो भी आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो सब कुछ लिखा रहेगा इन द एंगेजमेंट लेटर एंड दीज टर्म्स आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. It's very clearly written that these terms of engagement cannot supersede the law nor the standards on auditing. Of course, you cannot go against what is written in the law and what is written in the standards of auditing. जैसे अगर आपको याद है ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर में हमने देखा था कि अगर मेरे पास उस कंपनी के शेयर्स है तो आई कैन नॉट बी ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी. यू रिमेंबर? यस. My relative can hold up to 1 lakh face value, but I cannot hold a single share, correct? Suppose TOE में हम लिख देते हैं कि 5 shares होगा तो चलेगा, ऐसा चलेगा क्या? नहीं. You cannot go against the law. What is written in the law needs to be followed. It has to be complied with. Okay. Mark the next answer as very important. This is inherent limitations of audit. इनहेरेंट मतलब क्या? ये इनबॉर्न है, ये है. जैसे यू से नो अरे शी इज सो मच लाइक हर फादर, शी डज द थिंग्स सिमिलर टू हर फादर, दिस इज इनहेरेंट टू हर. शी कीप आस्किंग क्वेश्चंस लाइक हर फादर, दिस इज इनहेरेंट क्वालिटी, ये अपने आप ही है. मतलब ये जो लिमिटेशंस है ना हमारे ऑडिट के, ये है और ये रहेंगे. इनको हम कम कर सकते हैं बट एस्केप नहीं कर सकते. मतलब वी कैन नॉट अवॉइड इट. We may reduce the impact of these inherent limitations, but we cannot avoid these inherent limitations.
So what are they? First point, nature of evidence is, please do not write, persuasive and not conclusive. Let's understand this. See, याद है मैंने आपको बोला था कि क्लाइंट के पास 100 डेटर है. यस, तो हम 100 डेटर में से 100 डेटर को तो नहीं क्वेश्चन करते ना कि डू यू अग्री विद द बैलेंस. हमने सैंपल किया. सैंपल सिलेक्ट करना मतलब हमने 100 में से 10 का सैंपल लिया, मतलब हमने टेस्ट चेक किया. मतलब अब 100% चेकिंग तो करते ही नहीं है, हम सैम्पलिंग करते हैं. तो अब वो सैंपल जो हमने सिलेक्ट किया, ओके, उसमें 10 डेटर का नाम आ गया, ABCDEFGHI जो भी. ओके, अब व्हेन आई सेंड देम अ लेटर आस्किंग डू यू अग्री विद द बैलेंस, they may say yes or some may say no. If it is no, then we check, is it goods in transit, is it cash in transit, ऐसा कुछ हुआ है क्या. अगर नहीं तो we inquire कि क्यों डिफरेंस आ रहा है. करेक्ट है? आर यू विथ मी? आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ टू चेक डेटर्स बैलेंस? कैन आई डू दिस एक्सरसाइज फॉर ऑल 100 डेटर्स? डू यू थिंक मेरे पास और कुछ काम नहीं है, बस ये 100 डेटर को ही चेक करना है, ऐसा है क्या? नहीं, मेरे को तो पूरा ऑडिट रिपोर्ट बनाना है ना. मतलब ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव टू बी चेक. आई कैन नॉट सिट एंड वरी ओनली अबाउट डेटर्स. मतलब द एविडेंस दैट आई कलेक्ट फ्रॉम दैट सैंपल of 10 debtors vis-a-vis the population of 100 debtors, is it conclusive evidence कि सब कुछ ठीक है, कि सैंपल के बेसिस पे हमको लगता है कि सब कुछ ठीक होगा? लगता है, which means this is persuasive and not always conclusive. ऐसा हो सकता है ना कि आपने जो 10 डेटर सिलेक्ट किए वो बराबर थे, बट बाकी 90 में से 40 डेटर्स आर बोगस. बोगस मतलब दे आर ओनली बुक एंट्रीज, नो सच पर्सन्स एग्जिस्ट. तो ये तो गड़बड़ हो गया. मतलब जहां मेरे को एडवर्स ओपिनियन देना चाहिए था, मैंने क्लीन ओपिनियन दे दिया होगा. आर यू विथ मी? डू यू अंडरस्टैंड व्हाई डिफरेंट ओपिनियंस? अगर 100 डेटर्स में से 40 डेटर्स आर बोगस, इट मीन्स ये क्लाइंट बहुत बड़े बड़े फ्रॉड कर रहा है. मतलब यहाँ एडवर्स ओपिनियन देना चाहिए था, पर मेरे सैम्पलिंग के बेसिस पे मैंने कौन सा ओपिनियन दे दिया? क्लीन ओपिनियन. मतलब मेरा नेचर ऑफ एविडेंस इज कंक्लूसिव की परसुएसिव? परसुएसिव. ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक होगा. Test check, of course, we don't do 100% check, so that will always be a problem. Use of estimates. For example, depreciation. जैसे आपको रेट्स दिए ना 15% ऑन प्लांट एंड मशीनरी. डू यू थिंक एग्जैक्ट 15% ही वेयर एंड टेयर होता है क्या? नहीं, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. जैसे मोबाइल फोन, ओके, मोबाइल फोन इज कंप्यूटर, आपको 40% डेप्रिसिएशन मिलता है. ओके, सपोज मैंने इस साल एक लैपटॉप खरीदा 1 लाख रुपए का, ओके, और मैंने साल भर यूज किया है, तो उसका डेप्रिसिएटेड वैल्यू हो जाता है 60,000 इन द बुक्स. आर यू विथ मी? 1 लाख माइनस 40%, 60,000 इज द WDV फॉर द नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस. अच्छा, आज अगर मैं ये लैपटॉप बेचने जाऊं, इफ आई ट्राई टू सेल दिस लैपटॉप इन द मार्केट, डू यू थिंक आई विल गेट 60,000 रुपीज? नो. दूसरे दिन भी आप बेचने जाओगे तो भी इतना नहीं मिलेगा. हाफ, सीधा हाफ बोलते हैं. और अगर 1 साल यूज कर दिया है तो 30% मिलेगा, वो भी शायद अगर गुड कंडीशन में है तो. क्यों? टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट. 1 साल पहले का टेक्नोलॉजी आज रिडंडेंट हो गया है, आउटडेटेड हो गया है. मतलब वो 40% का एक एस्टिमेट है ना, एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं है ना. या जैसे आप बैड डेट रिजर्व क्रिएट करते हो, प्रोविजंस क्रिएट करते हो, ये सब एस्टिमेट्स है. These are not perfect figures, they are not scientific amounts.
इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। अब ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपका जो बुक्स लिख रहा है वो सीए नहीं है, वो ग्रेजुएट भी नहीं है, वो आर्ट्स का ग्रेजुएट है, वो कॉमर्स का ग्रेजुएट नहीं है, आर्ट्स का ग्रेजुएट है। तो आर्ट्स में सिखाते हैं क्या अकाउंटेंसी? तो मतलब उसका जो भी लिमिटेशन होगा उसके वजह से मेरे ऑडिट में भी तकलीफ तो होने ही वाली है। मैं थोड़ी उसका 100% काम चेक कर सकता हूँ, नॉट पॉसिबल। जितना किया किया, नहीं किया उसमें भी मिस्टेक्स हो सकती है। दिस इज इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स which will always exist. Now, due to these inherent limitations, there is an unavoidable risk, unavoidable, that material misstatements may remain undetected. यहां एम पे प्लीज लिख के रखिए, material misstatements. मटीरियल मतलब क्या? जो हमारा ऑडिट ओपिनियन अफेक्ट करने का कैपेसिटी रखता है। सी स्मॉल स्मॉल थिंग्स में इवन वी डोंट वरी। फॉर एग्जाम्पल, यू टोल्ड मदर यू विल कम बाय 10:10 एंड यू कम एट 10:15, विल शी वरी अबाउट इट कि 5 मिनट क्यों लेट हो गए आप? नहीं, इट्स ओके, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। बट सपोज आप बोले थे आप 10 बजे घर आ जाओगे, आप रात को 2 बजे घर आ रहे हो, विल शी वरी? Yes. Yes. This is significant. Like that, small frauds, errors, we are also ready to overlook. But big, huge frauds and errors where things look bogus, things look like they never existed, manipulation. Now this is material. Misstatement मतलब fraud और error. अगर intentional है तो fraud है, unintentional है तो error है. Misstatements अगर material है तो वो audit opinion को affect करती है. And that is why we try to keep this impact low. The impact of inherent limitations is tried to be kept low so that our audit opinion is appropriate. Are you understanding this? Do you understand what you are studying? We now know what is audit. We now have some idea of how audit is done. And we do understand that even if we do an audit, we cannot be responsible for non-detection of frauds and errors. Why? Because that is not our primary objective of doing audit. Our primary objective of doing audit is to express an opinion. While doing that, if we come across a misstatement, we will disclose the same. क्या आपको समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? Everybody, I want you to take 2 minutes and अच्छा ये आपको लिखना है, nature of evidence is persuasive. Please write down. Nature of evidence is persuasive and not conclusive. Example, debtor confirmation. यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, debtor confirmations. टेस्ट चेकिंग के सामने लिखो, दैट इज ऑडिटर कैनॉट डू 100% चेक. Auditor cannot do 100% check, comma, auditor selects samples. किया आपने? नेक्स्ट, यूज ऑफ एस्टिमेट्स में लिखो एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, कॉमा, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, क्रिएशन ऑफ अदर प्रोविजंस.
यहाँ पे आप लिख सकते हो inherent limitations of internal control. Example, unqualified personnel handling important activities. Unqualified personnel handling important activities. Handling important activities. किया? Yes. और वो MM को मटेरियल मिस स्टेटमेंट लिखा है आपने? मटेरियल मीन्स सिग्निफिकेंट, मिस स्टेटमेंट मीन्स फ्रॉड और एरर. Material word means significant, important. Misstatement means fraud or error. Okay, just I think we are almost done. I don't want to start a new topic here now. Next week when we meet, we'll continue from here. But I want you to please revise and come. Huh? See, the first unit no will take a little time. ऐसा हो सकता है कि हम लेक्चर में सिर्फ 2 ही पेज कर पाए. बट अगर हमारा फर्स्ट यूनिट अच्छे से हो गया ना, फिर एवरीथिंग इज वेरी इजी. सब ऐसा लगेगा कि अरे वाह ये क्या इजी सब्जेक्ट है. बट दैट फर्स्ट चैप्टर यू आल्सो हैव टू पुट इन एफर्ट टू ट्राई एंड रिमेंबर द ऑडिटिंग टर्मिनोलॉजीज. जैसे नेक्स्ट टाइम व्हेन आई आस्क यू हाउ डू आई चेक P&L आइटम्स, व्हाट विल यू से? मिस डू चेकिंग, कि मिस डू वाउचिंग, do vouching. Okay, if I ask you next time ki how will we check the internal control system, will you tell me yes miss we can have a lot of options, or will you tell me we will employ compliance procedures? We will employ compliance procedures. So I want the answer in auditing terminologies only. I don't want to check your knowledge. I want to know whether you are becoming auditors or not. आप स्मार्ट हो इसीलिए आप सीए कर रहे हो, लेकिन आपको ऑडिट आ रहा है कि नहीं वो हमको चेक कर. ओके, सो प्लीज रिवाइज टिल योर एंड कम. आई सी यू नेक्स्ट. थैंक यू.